السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشا عرفان اور میں ہوں احمد علی میدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کے آغاز پر آپ کو اپڈیٹ کریں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ، طلباء اور یونیورسٹی انتظامیہ کا ڈی جی آئی ایس پی آر کا پرتپاک استقبال۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلباء سے خصوصی نشست، سوالات کے جوابات دیے۔ طلباء اور فیکلٹی ممبران کا بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ طلباء کا مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بھرپور عزم۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اور فیکلٹی ممبران سے بھی ملاقات۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ پاک فوج مخالف منفی پروپیگنڈا کے خلاف ابہام اور شکوک و شبہات دور ہو گئے ہیں۔ مزید دورے کا احوال جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف بتائیے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے جو آپ کی مفادات پر اتفاق استعمال کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلباء طالبات خصوصی نشست موقع پر سوالات بات کا سلسلہ بھی ہوا۔ طلباء کا مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بھرپور عزم۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد جو محمد علی شاہ اور فیکلٹی ممبران سے بھی ملاقات کی۔ طلباء اور فیکلٹی ممبران کا بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کے لیے خراج تحسین۔ وطن عزیز اتفاق کے لیے اساتذہ اور طلباء پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کہنا شرکا نے مزید کہا کہ ڈی جی آئی پی آر کے باوقار متعدد جوابات انتہائی خوش آئند اور حوصلہ افزا تھے۔ پاک فوج کی خلاف منفی پروپیگنڈا کے باعث ابہام اور شکوک شبہات دور ہو گئے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سے گفتگو میں ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کے بارے میں آگاہی میں یہ کہنا تھا شرکا کا نوجوانوں میں غلط فہمیوں کے تعارف کے لیے اس طرح کے سیشن ضروری ہیں۔ جی ٹھیک ہے، عاطف پرویز اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ محکمہ صحت سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ پنجاب کے پبلک اور پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کے لیے ایڈمیشن پالیسی کی منظوری۔ سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی قرار۔ اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے ایم ڈی کیٹ میں $10,000 فیس مقرر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کینسر کے مریضوں کو ہر صورت ریلیف دینے کی ہدایت۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زاہد عابد سے۔ زاہد عابد اپڈیٹ کیجیے گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے ایم ڈی کیٹ میں $10,000 فیس مقرر کی گئی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ زاہد عابد اپڈیٹ کیجیے گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیسٹ ہے اس کی فیس $10,000 مقرر کی گئی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی صدارت میں خصوصی اجلاس ہوا جس میں محکمہ صحت سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے۔ اسی اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ سرکاری میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے، اور خاص طور پر اوورسیز پاکستانی کے جو بچے ہیں ان کے لیے ایم ڈی کیٹ فیس $10,000 مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالج لسٹ میں نام آنے پر امیدوار کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں 1/3 فیس جمع کرانا ہوگی، جبکہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کی حتمی میرٹ لسٹ آنے کے بعد یو ایچ ایس متعلقہ کالج کو جمع شدہ 1/2 فیس ٹرانسفر کر دے گی۔ اسی اجلاس میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ داخلے خواہش مند طلبہ حتمی میرٹ لسٹ آنے پر متعلقہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ہی باقی فیس جمع کرائیں گے، جبکہ مریم نواز کی جانب سے اس چیز پر اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ اس وقت جو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ کافی بہتر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سائیوال کے کارڈیک مرکز میں سرجری کے آغاز کو خوشائند قرار دیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی نیو اسپتال میں کوآبلیشن سینٹر میں مریضوں کے علاج کے لیے فول پروف اور شفاف طریقے سے وضع کرنے کی ہدایت کی گئی۔ لیکن خاص طور پر جو میڈیکل کالج میں داخلے کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ کافی اہم خیال کیے جا رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ سرکاری میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہوگا، جبکہ اوورسیز پاکستانی کے بچوں کے لیے ایم ڈی کیٹ $10,000 فیس مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے زاہد، بہت شکریہ۔ شہر سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی مچھروں کی افزائش میں اضافہ۔ پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں میں 36 ڈینگی کے کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ روز لاہور میں ڈینگی کے 6 مریض رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 1214 تک پہنچ گئی۔ شہر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 196 تک پہنچ گئی۔ اسپتالوں میں ڈینگی کاؤنٹرز تاحال غیر فعال۔ ڈینگی کے مریضوں کو علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد بلال سے۔ بلال اپڈیٹ کیجیے گا۔
بالکل لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی مچھروں کی افزائش میں اضافہ جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 36 ڈینگی کے کنفرم مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں لاہور میں ڈینگی کے 6 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 1214 تک پہنچ گئی ہے۔ شہر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 196 تک پہنچ گئی ہے۔ شہر میں ڈینگی کے مشتبہ مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ رواں سال شہر میں ڈینگی کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ہسپتالوں میں ڈینگی کاؤنٹرز بھی تاحال غیر فعال ہے۔ ڈینگی کے مریضوں کو علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈینگی کے بیشتر مریض نجی ہسپتالوں اور کلینک پر رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو ڈینگی SOPs پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر اعظم خواجہ عمران نذیر کا یہ کہنا ہے کہ رواں سال ڈینگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈینگی مچھر کی افزائش کو روکا جا سکے۔ ڈینگی سرویلنس کو ریز کیا جا رہا ہے اور لاروا کو ہنگامی بنیادوں پر تفجیع کیا جا رہا ہے، جبکہ شہریوں کو چاہیے کہ گھروں میں لازمی سپرے کرائیں اور لوشن کا استعمال کریں اور بلا ضرورت شام کے ٹائم صبح کے ٹائم جو سلیو لیس جو کپڑے ہیں ان کا استعمال نہ کیا جائے، اور جو ڈینگی SOPs بنائے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد کر کے آئندہ آنے والے دنوں میں ڈینگی وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ جی محمد بلال اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ خبر دیں آپ کو، کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی محمد علی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سوشل سیکیورٹی اسپتال فیصل آباد ڈائریکٹوریٹ ایسٹ اور ویسٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر کا فیصل آباد اسپتال میں کنسلٹنٹ کی خالی اسامیوں کو فوری پر کرنے کا حکم۔ آنکھوں کے بروقت آپریشن کے لیے فیکو مشین نواز شریف اسپتال لاہور، ملتان اور فیصل آباد کے اسپتالوں میں منتقل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف، اپڈیٹ کیجیے گا کہ کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، کون سے معاملات موضوع گفتگو رہے؟ جی بالکل، اجلاس میں سوشل سیکورٹی اسپتال فیصل آباد ڈائریکٹوریٹ ایسٹ اور ویسٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ MS اور ڈائریکٹرز کی آن لائن اجلاس میں شرکت۔ کمشنر کا فیصل آباد میں کنسلٹنٹ کی خالی اسامیوں کو فوری طور پر پر کرنے کا حکم۔ ڈائریکٹر MC کو فوری اقدامات کرنے کی ہدایت۔ آنکھوں کے بروقت آپریشن کے لیے فیکو مشین، جدید جو آپریشن مشین ہے کو نواز شریف اسپتال لاہور، ملتان، سرگود اور فیصل آباد کے اسپتال کے درمیان منتقلی کی ہدایت کی۔ کمشنر نے ڈائریکٹر ورز کو فیصل آباد اسپتال کا معائنہ کر کے رنگ و روغن اور مرمتی کاموں کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ کمشنر کا فیصل آباد اسپتال میں صفائی کے عملے کی خالی اسامیوں کو قواعد و ضوابط پیپرا رول کے تحت آؤٹ سورس کرنے کی ہدایت۔ سوشل سیکورٹی ڈسپینسری سمندری میں سہولیات کے کم استعمال پر کمشنر کا اظہار تشویش۔ ڈائریکٹر میڈیکل ایسٹ سے شفٹنگ یا ڈاؤن گریڈنگ کی تجویز طلب کر لی۔ ڈائریکٹر میڈیکل ویسٹ کو تمام شکایتی باکس ایک ہی ڈیزائن اور نمونے میں بنانے کی ہدایت دی گئی اور رپورٹ ہیڈ آفس جمع کروانے کی ہدایت۔ کمشنر کا کرایہ اور کرایہ فری عمارتوں کی مرمت کے تخمینہ تیار کر کے آئندہ گورننگ باڈی اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ جی عاطف، بہت شکریہ۔ فیصل ٹاؤن میں اغوا برائے تاوان کی واردات میں ملوث سب انسپیکٹر اغوا کاروں کا سرغنہ نکلا۔ اغوا کاروں نے مغوی انجینئر کی بازیابی کے لیے دوستوں سے 1 کروڑ تاوان مانگا۔ ایک ملزم گرفتار، دیگر اغوا کاروں کی گرفتاری کے لیے CCD کے چھاپے۔ مغوی کے دوستوں اور اغوا کاروں کی آڈیو ریکارڈنگ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اغوا کار سب انسپیکٹر آپریشنز ونگ میں تعینات اسلام پورہ تھانہ میں ڈیوٹی کرتا ہے۔ تفتیش میں اغوا برائے تاوان کی واردات میں تھانے دار قصوروار قرار پایا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل ٹاؤن میں اغوا برتوان کی واردات ہوئی تھی۔ اس میں جو ہے وہ سب انسپیکٹر جو ہے وہ اب اغوا کاروں کا سرغنہ نکلا ہے۔ CCD تفتیش میں یہ بڑا انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اغوا کاروں نے مغوی انجینئر کی بازیابی کے لیے جو ہے اس کے دوستوں سے 1 کروڑ تاوان جو ہے وہ مانگا تھا۔ مغوی کے دوستوں اور اغوا کار سب انسپیکٹر سمیت ساتھی ملزم کی آڈیو ریکارڈنگ نے جو ہے یہ سارے جو ہے وہ واقعہ کا بانڈا جو ہے وہ پھوڑا ہے۔ اغوا کار سب انسپیکٹر آپریشن ونگ میں تعینات ہے، اسلام پورہ تھانہ میں جو ہے وہ ڈیوٹی کرتا ہے۔ CCTV رائے کے مطابق اس حوالے سے جو ملزم ہے جو کہ جو سب انسپیکٹر ہے وہ تاحال مفرور ہے، اس کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اغوا کاروں نے مغوی کو بعد ازاں جو ہے وہ پتہ لگنے پر چھوڑ دیا۔ اس حوالے سے جو مغوی ہے وہ بھی خوفزدہ ہو گیا اور گھر چھوڑ کر جو ہے وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس حوالے سے CCTV رائے کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ملزمان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور جلد جو ملزمان ہیں ان کو جو ہے وہ پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا۔ سب جو ہے وہ مزید جو حقائق ہیں اس کیس میں سامنے آئیں گے۔ جی ٹھیک ہے، مزید کیا کہا گیا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ کدھر ہیں؟ ادھر پاکستان کے باہر ہیں؟ نہیں، میں پاکستان میں ہی ہوں۔ آپ بتائیں، حکم کریں، کیا ہوا ہے؟ آپ کہاں پہ ہیں ابھی؟ سر میں پاکستان میں ہی ہوں، فیصل آباد میں ہوں۔ آپ حکم کریں سر، آپ حکم کریں، آپ آرڈر لگائیں۔ اسلام آباد جا رہے ہیں، آپ ادھر آ جائیں گے کہ ہمیں اسلام آباد آنا پڑے گا؟
सर आप हुक्म करें सिर्फ। आपकी गाड़ी उधर खड़ी थी, जी जी गाड़ी हम नहीं लेके आए, चाबी हमारे पास है, जी जी ठीक है। जी इसको ले आए आपके कमरे से, सारा वो चीजें वगैरह हमारे कब्जे में है, लैपटॉप्स वगैरह सारा कुछ। जी जी आगे आपको पता है, आप छोटे भाई हैं, हमने इसको भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है। सर आपका बहुत शुक्रिया, सर बड़े आपका इज्जत के बहुत साथ। शुक्रिया। बहुत परेशानी का टाइम है हमारे लिए, आपका रोज़ का काम है, आपके लिए नॉर्मल है, हमारे लिए बहुत परेशानी है। आप हुक्म करें सर। मैं तो कहता हूँ कि अब रास्ते में जाते जाते आप बंदा ऐसा कोई डील अपना करने वाला हो जो हमारे पास आ जाए। सर आपके पास आ जाएगा, आपके पास इस्लामाबाद भी आ जाएंगे। आप बंदा है ऐसा कोई जो कर सकते हैं। सर बंदा है, भाई आ जाएगा, मेरा कज़न आ जाएगा। सर आप फिर किसी हुक्म भाई के करें। साथ देख लेगा। आप मुझे बताएं, इधर इसके कमरे का पीछे भी माहौल कोई बड़ा नहीं जो है। सर आप हुक्म करें, मेरा दोस्त है, ये भाई भी है मेरा। आप हुक्म करें सर, इस बात को ख़त्म करें यहाँ पे। आप हुक्म करें। तुम 5 करोड़ तो आप दे दोगे। सर इतनी मेरी औकात नहीं है सर। तो मैंने नोमी तेरा नाम बड़ा सुना हुआ है, ये तो आपका 30% पार्टनर था। मुदस्सर हुसैन तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब में दहशतगर्दी से मुतासरा शहरियों के लिए इमदादी बहाल तरमीमी बिल 2025 असम्बली में पेश कर दिया गया है। हुकूमती रुकन असम्बली अयाज अहमद ने गुज़िश्ता इजलास में बिल पेश किया है। दहशतगर्दी से जामक अफराद के लिए इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने के इस्तदा की गई है। तजवीज़ करदा इमदाद से मुतासरीन को फौरी और जायज़ इमदाद मिल सकेगी। बिल का ये मतन है। बिल मुतल्लिका कमेटी के हवाले, कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा खुर्शीद, बिल के मतन में मज़ीद क्या चीज़ें दर्ज की गई हैं, अपडेट कीजिएगा। हमजा खुर्शीद से भी तफसीलात जानेंगे। अभी आपको एक मरतबा फिर से अपडेट करें कि पंजाब में दहशत गर्दी से मुतासरा शहरियों की इमदाद व बहाली तरमीमी बिल 2025 असम्बली में पेश। हुकूमती रुकने असम्बली अयाज अहमद ने गुज़श्ता इजलास में बिल पेश किया। दहशत गर्दी से जाँ बहक अफराद के लिए इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की इस्तिदा। तजवीज़ करदा इमदाद से मुतासरीन की फौरी और जायज़ इमदाद मिल सकेगी। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। वेलकम बैक। वज़ीर आला ने कल पूरी कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा है। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तिलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि जो सैलाब मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते वो गैर ज़रूरी ज़ुबान दराजी भी मत करें। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन बताइएगा क्या तफसीलात हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने कल पूरी कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा है। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तिलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि जो सैलाब मुतासरीन के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते वो गैर ज़रूरी ज़ुबान दराजी भी मत करें। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला ने कल पूरी कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा है। आपको बताएं, वज़ीर आला ने कल पूरी कौम के सामने पंजाब का मुकदमा पूरी ताकत से लड़ा है। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फवाद चौधरी की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 24 अक्टूबर तक तौसीक कर दी। अदालत ने फवाद चौधरी के वकील से जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अबू बकर तारिक से। जी अबू बकर, अपडेट कीजिएगा कि कौन से ये मुकदमात थे, और आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कि फवाद चौधरी की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 24 अक्टूबर तक तौसीक कर दी। अदालत ने फवाद चौधरी के वकील से जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए हैं। मज़ीद जानते हैं अबू बकर तारिक से। अबू बकर, समाअत का अहवाल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस्लामाबाद शिकरती अदालत में मुगलपुरा जमान पार्क और जिना हाउस के करीब चौक में पुलिस की गाड़ियां जलाने के 5 मुकदमात में अबूरी जमानत का ये मामला है, जिसमें साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी हाजिरी के लिए अदालत में पेश हुए। अदालत ने फवाद चौधरी के वकील से जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए हैं, जबकि प्रोसिक्यूशन ने अदालत को यह बताया कि फवाद चौधरी पर कारकुनान को जलाओ गिराओ पर उकसाने का इल्जाम है, और फवाद चौधरी ने जिना हाउस के करीब पुलिस और में जो है वो गाड़ियां जलाने के 3 मुकदमात में जमानत दायर कर रखी है, जबकि मुगलपुरा और जमान पार्क में पुलिस की गाड़ियां जाने के 2 मुकदमात हैं जिसमें जमानत दायर कर रखी है। अदालत ने जो उनकी हाजिरी है वो मुकम्मल की, और वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद उनकी जो अबूरी जमानत है उसमें 24 अक्टूबर तक तौसीक कर दी है। जी अबू बकर, बहुत शुक्रिया।
वज़ीर आला पंजाब ने होनहार स्कॉलरशिप की डेडलाइन में तोसी कर दी। हालिया सैलाब के पेश नज़र स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर 2025 मुकर्रर। तलबा को मेरिट बेस्ड होनहार स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त देने की ताकीद। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक स्कॉलरशिप का मकसद वालिदैन का माली बोझ कम करना और तालीम जारी रखना है। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल सलाह की वजह से और जो उम्मीदवारान है और तलबा उनकी जानिब से डिमांड की गई थी कि होनहार स्कॉलरशिप की दरख्वास्त देने की तारीख में तोसी की जाए और अब इसको 26 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया जिसमें कहा गया है कि स्कॉलरशिप का मकसद वालिदैन का माली बोझ कम करना और तालीम जारी रखना है। तलबा के तालीमी सिलसिले को कुदरती आफात के बावजूद मुतासर होने से बचाना है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप सुनहरी मौका है, इससे तलबा ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफीद हों। प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटियों के दोनों तलबा इसके लिए जो है वो अहल है और दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, जिसके लिए अब तारीख में तोसी कर दी और 26 अक्टूबर तक दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। जी ठीक है, आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिफाजती इक़दाम नज़रअंदाज। वासा इलामा इकबाल टाउन डायरेक्टोरेट ने सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल के हिदायत को हवा में उड़ा दिया। तरक्याती मकामात पर हिफाजती स्टेशन गायब मजदूरों और शहरियों की जिंदगियां दाव पर लग गई। इलामा इकबाल टाउन मेन बुलेवर्ड पर खुले मैन होल्स किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। तरक्याती सामान सड़कों पर फेंक दिया गया, ट्रैफिक मुतासिर होने लगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा, हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है? ये वज़ीर आला पंजाब के फ्लैगशिप लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम वासा की मुबैना गफलत ने इस मंसूबे पर सवालिया निशान उठा दिया है। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिफाजती इक़दाम नज़रअंदाज करने के साथ साथ सेक्रेटरी हाउसिंग के अहकामात की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। वासा इलामा इकबाल टाउन डायरेक्टोरेट ने सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत को हवा में उड़ाते हुए तरक्याती मुकामात पर हिफाजती शीटें नस्ब ना की, जबकि मजदूरों और शहरियों की जिंदगियां भी दाव पर लगा दी। इलामा इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड पर खुले मैन होल्स और ऊपर ढक्कन टूट चुके हैं, किसी भी वक्त ये बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा तरक्याती सामान सड़कों पर फेंक दिया गया है, जिसमें रेत, बजरी, सीमेंट और पत्थर ने ट्रैफिक को जाम कर दिया है। जहां जेब ब्लॉक की गलियां खोद कर अधूरी छोड़ दी गई हैं और आवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया गया है। अब मॉनसून गुजर चुका है मगर वासा के तरक्याती काम अधूरे और हिफाजती इंतजामात सिफर हैं। इससे कबल ख्याबान फिरदौसी पर भी सीवरेज डालने के लिए जो दौरान हिफाजती शीटें नहीं लगाई गई थी, जिस पर सेक्रेटरी हाउसिंग की तरफ से नोटिस लेते हुए वासा हुकाम की सरजनिश भी की गई, लेकिन अब माजी की सरजनिश भी बेअसर हो चुकी है और वासा ने दोबारा वही गफलत जहां जेब ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में दोहरा दी। खुले मैन होल्स और टूटे ढक्कन बच्चों और मोटरसाइकिल सवारों के लिए मौत के कुएं साबित हो सकते हैं। तरक्याती मवाद सड़कों पर रखकर अवामी आमदोरफ्त और तजारती सरगर्मियां मफलूज कर दी गई हैं। इस तरह सेक्रेटरी हाउसिंग की हिदायत पर अमल दरामद न करना वासा की इंतजामी बगावत के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को गैर संजीदगी से लेना संगीन बेज़ाब्तगी है। महकमा हाउसिंग की तरफ से लाहौर न्यूज़ का ये मामला उठाने पर नोटिस लिया गया है और वासा से हिफाजती शीटें नस्ब ना करने, तामीराती काम जल्द मुकम्मल ना करने और तामीराती काम में गफलत बरतने पर जवाब भी तलब कर लिया गया है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया। आरज़ी असातिज़ा बनने के लिए लाखों उम्मीदवार मैदान में आ गए। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में आरज़ी असातिज़ा की भर्ती के लिए काम शुरू। मुकर्ररा तारीख तक 3 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवा दी। लाहौर डिवीज़न में 1153 सीटों के लिए 45,000 दरख्वास्तें जमा हुई। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक महकमा की तारीख में पहली बार इतनी दरख्वास्तें मौसूल हुई। कामयाब उम्मीदवारों को माहाना 50,000 तनख्वाह दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। आतिफ परवेज से भी तफसीलात जानेंगे, लेकिन आपको अपडेट कर रहे हैं कि आरज़ी असातिज़ा बनने के लिए लाखों उम्मीदवार मैदान में आ गए। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में आरज़ी असातिज़ा की भर्ती के लिए काम शुरू। मुकर्ररा तारीख तक 3 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरकारी कॉलेजेस में आरज़ी असातिज़ा की भर्ती का अमल शुरू किया गया था और मुकर्रर तारीख तक कोई 3 लाख असातिज़ा के लिए उम्मीदवार सामने आ गए हैं। ये महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से इस दफ़ा
4 सीटों पर भर्तियां की जानी है। लाहौर डिवीजन की बात की जाए तो यहाँ पर 1153 पोस्टों के लिए 45,000 उम्मीदवार मैदान में आए हैं। और बात कर ली जाए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हुकाम का कहना है कि तारीख में पहली दफा है कि इतनी बड़ी तादाद में जो दरख्वास्त गुजार हैं वो उन्होंने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। दरख्वास्तों की स्क्रूटनी का अमल शुरू कर लिया गया है और जल्द अब जो उम्मीदवार हैं उनको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। तो ये 8,004 पोस्टें हैं जिसके लिए 3 लाख के करीब उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं और ऑनलाइन ये दरख्वास्तें वसूल की गई थी। तमाम उम्मीदवार जो हैं इनके इंटरव्यू किए जाएंगे और महकमा हायर एजुकेशन का कहना है कि एक टीचर को माहाना 50,000 रुपये तनख्वाह। आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सूबाई वजीर लेबर फैसल अयूब खोखर का सुंदर वर्कर वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का दौरा। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत 720 फ्लैट्स के अलॉटमेंट के अमल को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। फेज़ 2 के 680 फ्लैट्स की तामीर तेज़ करने के अहकामात भी जारी कर दिए। मलिक फैसल अयूब की फेज़ 3 की तामीर के हवाले से भी इक़दामात की हिदायत। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, इस दौरे का अहवाल बताइएगा। ये बिल्कुल सूबाई वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोखर ने जो है ये वर्कर को मिलने वाले फ्लैट के जो मंसूबा है उसका दौरा किया है। मेहनत कशों के लिए रहायशी सहूलतों की फराहमी में तेजी आई है और सूबाई वज़ीर मेहनत मलिक फैसल अयूब खोखर ने सुंदर वर्कर वेलफेयर कम्प्लेक्स का दौरा किया। वर्कर वेलफेयर फंड के तहत 720 फ्लैट्स के अलॉटमेंट के अमल को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की है। वर्कर वेलफेयर कॉम्प्लेक्स फेज 2 के 680 फ्लैट्स की तामीर तेज करने के अहकामात जारी किए। फेज 2 की तकमील के बाद फेज 3 की तामीर के हवाले से इकदामात करने की हिदायत की गई है। सूबाई वज़ीर का कहना था कि वर्कर वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में आला मेयार का तामीराती मटीरियल इस्तेमाल किया जाए। सेक्रेटरी लेबर नईम गौस, सेक्रेटरी वर्कर वेलफेयर फंड डॉक्टर मुश्तबा बरवाना भी हमरा थे। डायरेक्टर वर्क्स अतीक गलानी ने तामीराती कामों और फ्लैट के अलॉटमेंट के हवाले से सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में मेहनत कशों के फलाह के लिए काम किए जा रहे हैं, ये कहना था सूबाई वज़ीर का। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में मेहनत कशों को राशन कार्ड, लेबर कॉलोनीज और वर्कर वेलफेयर स्कूलों की तामीर की जा रही है, ये कहना था वज़ीर लेबर का। जी आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मुनाफाखोर माफिया लूट मार से बाज नहीं आया। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। प्याज 120, टमाटर 200, लहसुन 500, अदरक 640, लीमू 200 रुपये किलो में फ़रोख्त, सेब 400, मौसमी 280, आड़ू 420, अंगूर 360 रुपये किलो में दस्तयाब। जबकि ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा फ़ी किलो, कीमत 490 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की कीमत 305 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। मज़ीद जानते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने देखा कि शहर के बेशतर जगहों पर जो है मनमाने रेट्स पर चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। इसी तरह जो सब्जियां और फल हैं उनमें भी यही जो है उतार चढ़ाव देखने में आता है कि सरकारी रेट्स के बरक्स जो है वो चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। अगर हम बात करें फलों की, अगर हम बात करें सेब, काला कोल्हू की, तो उसका सरकारी रेट से 10 रुपये तक जो है वो रेट बढ़ाकर जो है मांगा जा रहा है। जबकि जो केला दर्जा वाला उसका सरकारी रेट पर 200 है, जबकि मार्केट के अंदर जो है वो 220 से 230 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। पूर गोला जो सरकारी रेट लिस्ट में 250 रुपये किलो मुकर्रर है, लेकिन 360 से जो है वो तकरीबन 350 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और सब्ज़ी मंडी में भी जो है वो सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स जो है 10 से 15 रुपये के ज़्यादा मुनाफे के साथ जो है चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। और शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं इसके अंदर बिल्कुल जो है वो सिरे से गायब नजर आते हैं। अगर इसके साथ से बात करते चले हम दीगर मसनूआत की, इसमें पोल्ट्री भी शामिल है, तो पोल्ट्री की भी यही सूरत हाल है। अगर हम बात करें पोल्ट्री की, तो पोल्ट्री मसनूआत के दाम में भी उतार चढ़ाव जारी है। ब्रायलर की कीमत में 8 रुपये तक जो है महंगा कर दिया गया, क्योंकि ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है वो 482 से महंगा करके 490 जो है वो कर दी गई है। और अंडों की कीमत भी इसी तरह से है कि अंडों की कीमत जो है वो 305 रुपये दर्जन के हिसाब से अंडे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लेकिन शहरियों का ये कहना है कि इस तमाम अमल के अंदर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो सिरे से गायब नजर आते हैं, जिसकी वजह से आवाम को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो महंगाई माफिया होता है वो अपने मनमाने रेट्स के ऊपर चीज़ें फ़रोख्त करता है। जी मुबीन, बहुत शुक्रिया। सैलाब के बायस रेलवे का फैसलाबाद शोरकोट खानेवाल सेक्शन बंद। लाहौर से कराची, क्वेटा और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों को जाने और आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील। ट्रेनें घंटों लेट होने के बायस मुसाफिरों की तादाद में रिकॉर्ड कमी। मुख्तलिफ वजूहात पर आज 3 ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। कराची एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस को मनसूख किया गया। कराची और शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिरों को दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद, बताइएगा।
आपको अपडेट कर रहे हैं कि सैलाब के बाइस रेलवे का फैसलाबाद शोरकोट खानेवाल सेक्शन बंद है। लाहौर से कराची, कोयटा, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों को जाने और आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील। फाहद से राबता बहाल हुआ है, मजीद उनसे जान लेते हैं। फाहद बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और इसके बायस से रेलवे का फैसलाबाद शोरकोट खानेवाल सेक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। लाहौर से कराची, कोयटा, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों को जाने और आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल और रूट दोनों तब्दील कर दिए गए हैं। ट्रेनें घंटों लेट होने के बायस मुसाफिरों की तादाद में जो है वो रिकॉर्ड कमी जो है वो सामने आई है। रेलवे ने मुख्तलिफ वजूहात पर आज भी 3 ट्रेनें जो है वो मनसूख कर दी हैं। कराची एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस और शाह हुसैन ट्रेन को जो है वो आज मनसूख किया गया है। कराची और शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिरों को दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किया जाएगा, जबकि पेशावर से लाहौर आकर कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज नागजीर वजूहात की बिना पर लाहौर से कोयटा के लिए रवाना नहीं होगी। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को जो है वो लाहौर रिजर्वेशन ऑफिस या अपने करीबी रिजर्वेशन ऑफिस से अपना रिफंड जो है वो मिल जाएगा। कराक्रम कराची के लिए आज जो है वो दोपहर 3 बजे लाहौर से रवाना होगी। इसी तरह पाक बिजनेस एक्सप्रेस कराची के लिए दोपहर 4:30 की बजाय 1 घंटा 30 मिनट ताखीर से शाम 6 बजे लाहौर से रवाना होगी। शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिरों को आज ग्रीन लाइन ट्रेन में एडजस्ट किया जाएगा, जबकि ग्रीन लाइन कराची के लिए रात 8:50 पर रवाना होगी। कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो लाहौर से बरास्ता साहिवाल कराची जाएगी, जबकि कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस बरास्ता लाहौर साहिवाल कराची जाएगी। कराची जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस भी फैसलाबाद से बरास्ता चक जुमरा, सांगला है, लाहौर साहिवाल कराची जाएगी। कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस लाहौर से जो है वो बरास्ता लाहौर साहिवाल कराची जाएगी। कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस बरास्ता साहिवाल लाहौर रावलपिंडी जाएगी। कराची से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस बरास्ता साहिवाल लाहौर सांगला हिल चक जुमरा फैसलाबाद जाएगी, जबकि लाहौर कराची से जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस भी आज बरास्ता लाहौर साहिवाल पेशावर जाएगी। जी फहद अमीन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में नई भर्तियों का ऐलान। डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और ऑफिसर्स की 100 से ज़ायद असामियाँ खाली। डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम्स की 18 नशिस्तों, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम्स की 26 असामियों पर भर्ती होगी। ऑफिसर प्रोग्राम्स की 40 और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 8 असामियों को पुर किया जाएगा। भर्ती के लिए उम्र की हद 33 था 40 साल मुकर्रर। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में नई भर्तियों का ऐलान किया गया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में जो है मुताबिक पोस्टों पर भर्ती का ऐलान किया गया है और ये डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑफिसर की 100 असामी हैं। डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम्स की 18 नशिस्तें हैं, तनख्वाह 1,96,000 है। असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम की 26 असामी, तनख्वाहें जो है वो 1,31,000 है। ऑफिसर प्रोग्राम की 40 नशिस्तें, तनख्वाह 93,750 रुपये मुकर्रर की गई है। इसके साथ स्पेशलिस्ट जो हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू की 8 असामियों पर भी भर्ती का ऐलान किया गया है। नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए भी असामियाँ जो है वो एडवर्टाइज की गई हैं। ड्राइवर की भी 10 असामियों पर जो भर्ती की जाएगी। दरख्वास्त देने की उम्र 33 से 40 साल मुकर्रर की गई है। ठीक, आतिफ बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा है कि छोटे सूबे बनाने के लिए नौजवानों को रीऑर्गेनाइज करने का एजेंडा लेकर आए हैं। जमहूरियत में अवाम कायल हो जाएं तो मामला पार्लिमान तक पहुंच जाता है। जो परफॉर्मेंस देगा वही आगे आएगा, तो ही अवाम के लिए काम करेगा। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंज, इम्कानात और नई राहें। फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि 7 चीजें मिलकर मुल्क बनाती हैं। सबसे पहली चीज पब्लिक वेलफेयर है। अमन, इंसाफ, मईशत समेत दीगर पॉइंट्स इसी को सपोर्ट करते हैं। पब्लिक वेलफेयर नहीं होगी तो कामयाब मुल्क नहीं कहला सकते। अवाम को सहूलियात देने के लिए पूरी दुनिया ने खुद को डिसेंट्रलाइज किया, छोटे इंतजामी यूनिट्स बनाए। हमारे सिवा किसी मुल्क में इतने बड़े सूबे नहीं। 7 चीजें ऐसी हैं जो मॉडर्न कंट्रीज को बनाने के लिए जरूरी है। सबसे पहले जो जिक्र आता है वो पब्लिक वेलफेयर है। अमन हो, सुकून हो, आपका जान, आपकी माल, सब आप ये फील करें कि महफूज है। सोशल वेलफेयर हो, वहाँ पे इकोनॉमिक वेलफेयर हो, पॉलिटिकल वेलफेयर हो, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट हो। अगर वो पब्लिक वेलफेयर कर सकते हैं और पब्लिक वेलफेयर कर रहे हैं
तो वो कामयाब मुल्क कहलाएंगे। जिन लोगों ने तरक्की कर सके हैं कि उन्होंने अपनी चीज़ों को, अपनी गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज किया। मियां आमिर महमूद का कहना था कि हमारे सूबों के पास वसाइल और पैसे हैं लेकिन मैनेज करने की कैपेसिटी नहीं। हमारी तजवीज़ है 33 सूबे बना दिए जाएं। डिवीजन्स की बाउंड्री पर किसी को इख्तलाफ नहीं, ये अरसे से ऐसे ही चल रहे हैं। छोटे यूनिट्स बनाने से अखराजात में भी इजाफा नहीं होगा क्योंकि हर डिवीजन में पहले से सिस्टम मौजूद है। सूबों के पास पैसे हैं लेकिन इतनी बड़ी मैनेजमेंट को मैनेज करने की कैपेसिटी शायद नहीं है। तजवीज़ हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स को, जो 33 हैं, उन्हें अलग अलग सूबा बनाया जाए। ये वो डिवीजन्स हैं जिसमें सदियों से लोग रह रहे हैं और मिलजुल के रह रहे हैं। ये ऐसी बाउंड्रीज हैं जिसपे कोई इख्तलाफ नहीं है। सूबों का नंबर बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस एक्चुअली कम हो जाएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ने कहा, हम अपने सूबों की जीडीपी कैलकुलेट ही नहीं करते। हमारे इदारे इसलिए कमजोर हैं क्योंकि वो चलाने के काबिल ही नहीं हैं। हम इदारों को चलाने के लिए ही यूनिट छोटे करने की बात कर रहे हैं। हम अलग से सूबों की जीडीपी कैलकुलेट ही नहीं करते। हमारे इंस्टीट्यूट्स वीक हैं बिकॉज वो चलाने के काबिल रहे ही नहीं है। हमारे अंदर इतनी वो रही नहीं है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स को हम चला सकें, और जब नहीं चला सकते तो वो वीक ही होते हैं। उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि हम छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाएं ताकि हमारे इंस्टीट्यूशंस मजबूत हों। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का कहना था कि जो वजीर आला काम करने वाला होगा उसको कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आला काम किया और बड़े लीडर बन गए। जब ज्यादा सूबे बनेंगे तो तरक्की के लिए मुकाबला शुरू होगा। हर वजीर आला नौजवानों और रोजगार के लिए काम करेगा। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आगे आने वाला ही कौमी सतह पर आएगा। सियासी लीडरशिप हमेशा मिडिल क्लास से ही आती है। हमारे लीडर्स को हमारे मसाइल का इल्म ही नहीं। ऐसे कभी नहीं हुआ कि एक पॉलिटिकल लीडर काम कर रहा है, इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर, वो प्राइम मिनिस्टर है या सीएम है, वो काम करना चाहता है, उसको काम करना आता है तो उसको रोक कोई नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब तो चीफ मिनिस्टर बने थे ना, उस वक्त की गवर्नमेंट ने उनको बड़ा रोका काम करने से, तो उन्होंने कर लिया, फिर भी बड़े लीडर बन गए। जब आपके 33 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे तो आपके 33 चीफ मिनिस्टर्स होंगे। परफॉर्म करेंगे तो नेशनल पॉलिटिक्स में आ सकेंगे। दुनिया में पॉलिटिकल लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है, ऑर्गेनिकली ग्रोन अप लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप तो कहीं और से आती है हमारी, उसको तो हमारे मसलों का पता ही नहीं है शायद। मियां आमिर महमूद ने कहा कि किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए 30 साल लगते हैं। चीन और भारत की मिसालें हमारे सामने हैं। मुल्क तरक्की करेगा तो ही नौजवान तरक्की कर सकेंगे। अगर ये हो गया तो नौजवान कुछ अरसे बाद अच्छी सोसाइटी में रह रहे होंगे। अगर लोग कायल हो गए तो ये मामला पार्लियामान में भी पहुंच जाएगा। किसी कंट्री को टर्न अराउंड करने के लिए 30 इयर्स लगते हैं। ये चाइना ने साबित किया, ये इंडिया भी कर रहा है। अभी तो और ज्यादा फास्ट होगी ना टेक्नोलॉजी और हर चीज़, तो अभी तो हो सकता है इससे भी कम लग रहे हो। आपकी तरफ से अगर एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होता है, लोग ये समझते हैं कि ये होना चाहिए, फिर ये सेनेट में भी आएगा और कौमी असम्बली में भी आएगा और हर जगह पे आएगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। सोशल मीडिया पर हमारे सफीर बने और इसको आगे फैलाएं। ये सोचना बिल्कुल छोड़ दें कि हम क्या कर सकते हैं। हम